Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. But in the last lecture, we had discussed about agriculture na? And types of farming we had discussed, and in that we have learned three types of farming. So, first, primitive subsistence farming. Second, the intensive subsistence farming, and the third is commercial farming. So, if we talk about the primitive subsistence farming, means this type of farming is done by the farmers for their own subsistence now, and in this type of farming they use the old tools, old methods, and mostly they dependent on monsoon now. And next type, if we talk about the intensive subsistence farming, means this type of farming is practiced on the large populated areas where the high population is there, and in that this type of farming also doing for the means own subsistence now. And next thing, if we talk about the commercial farming, so commercial farming, it is done, means it is practiced by the farmers for benefits, for business purposes now, and means in this the crops are grown for sale in the market. So all these things we have revised in the last lecture. So let's start today's topic, and today next heading we will discuss, and that is cropping pattern. So if we talk about cropping pattern, so in that we will do three types of season. Means cropping pattern means crop को कैसे ग्रो किया जाता है, उनके सोविंग के अकॉर्डिंग उनका क्या क्या पैटर्न है. So according to that cropping pattern we will divide the cropping sowing season into three seasons. Okay, so let's discuss today's topic, and that is cropping pattern. So if we talk about the cropping pattern, in this we will discuss about the cropping season. And if we talk about the cropping season, so there are three main cropping seasons. Okay, so with the help of this table we will discuss this topic, means three main seasons. So the three main types of cropping seasons are, firstly you have to learn the names, that which are these three seasons. First, Kharif season, Rabi season, and Jaith. Okay, so let's start this table. So firstly, with the help of these 4 points, means sowing period, harvesting period, crops, irrigation, we will discuss each table. Okay, so firstly if we talk about the Kharif, okay, Kharif season, Kharif crops. So let it compare with your school. Okay, सी खरीफ सीजन कब स्टार्ट होता है, जब हमारा समर ब्रेक ओवर होता है और हम जुलाई में जब स्कूल में आते हैं. मीन्स जो हमारा जून जुलाई का जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स जब ऑनसेट होता है मॉनसून का. ओके, कि जब मॉनसून का ऑनसेट होता है, जब हम समर ब्रेक के बाद स्कूल में आते हैं, तो उस टाइम पे जो क्रॉप शो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, खरीफ. सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सोइंग पीरियड्स, so showing periods of these kharif period, also onset of monsoon means जब monsoon start होता है. और आपको अगर लर्न नहीं होता, कंफ्यूजन होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं कि सबसे पहले जब हम समर ब्रेक के बाद स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जुलाई है तो वो टाइम पीरियड. सो इसमें हमारा जून और जुलाई, मीन्स जून जुलाई के आसपास, मीन्स जो ऑनसेट होता है मॉनसून का, जो उस टाइम में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, खरीफ. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द हार्वेस्टिंग पीरियड, मीन्स देयर हार्वेस्टिंग पीरियड मीन्स खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ ऑनसेट ऑफ द मॉनसून दे ग्रोन. एंड नेक्स्ट इन द सितंबर और अक्टूबर, मीन्स जब हमारा जो फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम ओवर होते हैं स्कूल में, सितंबर में होता है ना हमारे, और तब क्या होता है इनका हार्वेस्टिंग. तो आपको याद रखना है खरीफ, इफ यू टॉक अबाउट द खरीफ, कि जब हमारा समर ब्रेक होता है और समर ब्रेक के बाद हम स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो 2 मंथ्स वो जून एंड जुलाई. एंड नेक्स्ट जब हमारा फर्स्ट मिड टर्म ओवर होता है, मीन सितंबर एंड अक्टूबर, सो उस मंथ में इनका क्या होता है, हार्वेस्टिंग. एंड नेक्स्ट क्रॉप्स, इफ यू टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस खरीफ क्रॉप, देन पैडी क्रॉप्स. मीन्स इन दिस मोस्टली खरीफ में कौन सी क्रॉप्स आती हैं, दोज रिक्वायर्ड वाटर. जैसे पैडी क्रॉप्स है, पैडी क्रॉप्स के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है,
nowadays this time for kharif na. So see, paddy, maize, jawar, bajra, tur, moong, urad, cotton, jute, groundnuts and soybean. So these are the main crops of this kharif. Okay, next thing, if we talk about the irrigation, so what is the main source of irrigation for these crops? See beta, these are shown in the monsoon season na. So main source is rainfall. Sometimes means in the between we can depend on tubewell also, but the main source is in rainfall because रेन होती रहती है तो इन क्रॉप्स को रेन से वाटर मिलता रहता है. ओके, next thing, now come on next point. And if we talk about the grown area, means where this type of kharif crops are grown, so mostly this kharif in Assam, in West Bengal, coastal region of Odisha, Andhra Pradesh, means these areas where this means rainfall, heavy rainfall areas, this type of crops are grown. Okay, and the next thing, if we talk about the rabi crops, now see, जब हमारी खरीफ की हार्वेस्टिंग हो जाती है, आफ्टर खरीफ किसकी टर्न आती है? हमारी रबी क्रॉप्स की. ओके, हम खरीफ को खरीफ के बाद अब हमारा यहाँ पर क्या था? हमारा मिड टर्म, फर्स्ट टर्म ओवर हुआ था. अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म के बाद मीन्स अक्टूबर और नवंबर. ओके, सितंबर में हमारा फर्स्ट टर्म ओवर होता है. फर्स्ट टर्म के बाद जो टाइम आता है वो किसका है? हमारा रबी क्रॉप्स का. ओके, इसको हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं. ये समर क्रॉप्स है हमारी. सो इन विंटर ये क्या है हमारा? विंटर अक्टूबर और नवंबर. सो इफ वी टॉक अबाउट देयर सोविंग टाइम्स, सो अक्टूबर एंड नवंबर. एंड नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग टाइम. अब हार्वेस्टिंग टाइम इसका कब होता है? जब हमारे फाइनल एग्जाम ओवर होते हैं. मार्च अप्रैल में होते हैं. अप्रैल में हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है. इट मीन्स मार्च में ओवर होते हैं ना हमारे. तो यू हैव टू रिमेम्बर लाइक दिस कि जो खरीफ होती है, जब हमारे मिड टर्म एग्जाम ओवर होते हैं तब हार्वेस्ट की जाती है. और जो हमारी रबी क्रॉप है, जब हमारे फाइनल टर्म एग्जाम ओवर होते हैं. ठीक है, जब फाइनल एग्जाम से तब ओवर होते हैं तब इनका हार्वेस्टिंग टाइम है. सो मार्च एंड अप्रैल. एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्रॉप्स, सो what are means which type of crops are main in this? Wheat, barley, peas, gram and mustard. Okay, and next thing, if we talk about the irrigation, means according to this fourth point, if we discuss the irrigation facilities, that from where they get irrigation water. So see here, western temperate cyclone and canals. Now see, western temperate cyclones. In 9th class we read about this कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, जब उन पर जो मीन्स साइक्लोन के थ्रू जो मेडिटेरियन सी था, वी रेड अबाउट दैट ऑल्सो, कि जब साइक्लोन आते हैं तो उनके ऊपर जो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो मॉइस्चर इंक्रीज होता है, और जो मॉइस्चर इंक्रीज होता है, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वो उनको अपने साथ ले आते हैं हमारे हिमालयन पार्ट में ऊपर की तरफ. और जिससे कि जो विंटर सीजन होता है, कई बार वहाँ पर विंटर सीजन में बारिश होती है जो कि वीट की क्रॉप्स के लिए बहुत सुटेबल होती है. सो वी रेड दिस थिंग ना. सो जो ये दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स मीन्स इन दिस सीजन मेनली जो मीन्स ये जो बहुत हेल्पफुल होता है, ये वेस्टर्न साइक्लोन जो वाटर मीन्स जो विंटर में जो हल्की फुल्की जो बारिश होती है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम्स. ओके, एंड द नेक्स्ट इज जो कैनाल्स, मीन्स कि जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल कैनल्स बना लेते हैं. जब मानसून सीजन होता है तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे वाटर कलेक्ट कर लेते हैं और उस वाटर को यूज कब करते हैं? जब वो रबी की क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. ओके, सो दिस वी कैन इंक्लूड इन द irrigation facilities. And if we talk about the areas that where these type of crops are grown, so in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh, mean in these states mainly these rabi crops are grown. Okay, and the next thing, if we talk about green revolution also we read in the 9th class that due to the green revolution the main crops rice and wheat increased na, these are production. And this crops means अब ये जो green revolution था we read in the 9th class कि इससे
कुछ स्टेट्स में तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, लाइक वी टॉक अबाउट द पंजाब एंड हरियाणा। कुछ स्टेट्स को बहुत कम बेनिफिट मिला और कुछ को मिला ही नहीं, मीन्स इक्वल नहीं था वो ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें जो मेन जो मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो मेन रोल था वो कौन सी क्रॉप का था, रबी क्रॉप का। ओके, नाउ द नेक्स्ट जेद। अब जेद का जो सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ओके, अब शॉर्ट टाइम पीरियड कैसे, सी हमारे एनुअल एग्जाम हो गए। ओके, यहाँ पर जैसे हमने किया कि हमारे फाइनल एग्जाम और हुए, मीन्स जब उनको हार्वेस्ट किया। अब फाइनल एग्जाम के बाद हम अप्रैल और मई 2 मंथ आते हैं ना स्कूल में। सो जो अप्रैल और मई का जो टाइम पीरियड होता है, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद, मीन्स ये टू जो मेन क्रॉप्स हैं इनको ग्रो करने के बाद जो बीच का जो रेस्ट ऑफ टाइम बचता है, जो टाइम पीरियड बचता है, जो फार्मर उसमें जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, मीन्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन से दैट जेद। ओके, सो जेद सीजन की जो मीन्स क्रॉप्स होती हैं वो स्मॉल पीरियड्स के लिए होती हैं। अब जेद में हम क्या लगा सकते हैं कि जो समर की जो क्रॉप्स आएंगी वो आएंगी हमारे इसमें। सो सी इफ वी टॉक अबाउट देयर sowing period, so sowing period March and April, okay, means after annual exam. And next if we talk about harvesting time there, May and June, okay. And next thing, मई एंड जून जब हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स जून का जब समर ब्रेक होता है और मई में हमें सबसे ज़्यादा खाने को क्या मिलता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ठीक है। सो दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस सीजन, सी वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स ऑल्सो ग्रोन इन दिस सीजन, मीन्स जब हार्वेस्टिंग के बाद, वीट के हार्वेस्टिंग के बाद जो बीच का टाइम पीरियड बचता है, मीन्स बिफोर सोविंग द पैडी क्रॉप्स, जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉडर क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इफ वी टॉक अबाउट द इरिगेशन, देन private source of irrigation means like tubewell. Okay, so all this thing we have learned about this means cropping season na? So if we talk about this paddy crop, beta, this is, see, it is also important that 3 crops of paddy are grown in a year, means crops का 3 मेन जो नेम है, मीन्स इसकी वैरायटी है ओस, अमन एंड बोरो। ओके, दीज आर दी वैरायटी ऑफ दिस पैडी क्रॉप, मीन्स पैडी क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 3 क्रॉप्स होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, इनको ग्रो किया जाता है। सो अप टू हियर अंडरस्टूड दैट मैनी वैरायटीज आर देयर ऑफ दिस क्रॉप्स, लाइक इंडिया इज अ डाइवर्स country na, in our country many religions are there, many languages are there. Even if we talk about in the term of agriculture, then there are diversity in the crops also, diversity in the agriculture pattern also. Okay, so up to here it is clear. Now see, if we talk about their crops कि हमें confusion होती है, तो कुछ कुछ crops को हम idea लगा सकते हैं कि they how we will learn them. See, like paddy crops we know very well that it is means intensive water intensive crops ना, कि इसको water की बहुत ज़्यादा need होती है। So it is in the खरीफ, रबी, जैसे हमारा ये लगा लो ग्राम। अब ग्राम जो है चना, उसको क्या होता है कि अगर हमें एक बार भी वाटर दें, मीन्स एक बार उसका इरिगेशन हो जाए, तो वो पूरा मीन्स जब तक हार्वेस्ट होता है काम चल जाता है उससे, मीन्स उसको बहुत कम नीड होती है वाटर की। सो इट इंक्लूड इन रबी। सो जो रबी की जो मेन क्रॉप्स होती हैं, एक वीट को छोड़ के बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है उनको वाटर की। ओके, सो इन लाइक दिस ऑल्सो वी कैन लर्न दिस। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि रबी खरीफ विलन की, रबी जो है वो रबी के टाइम पीरियड में ग्रो की जाती है। ओके, खरीफ मीन्स इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, इनको हम समर क्रॉप्स बोलते हैं, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। बट कुछ हमारी क्रॉप्स ऐसी भी होती है जो पूरे 1 ईयर के लिए ग्रो की जाती है, लाइक जैसे हमारी तुअर है, ठीक है, मूंग है हमारी, और नहीं मूंग तो कभी कभी क्या है कि रबी सीजन में भी ग्रो की जा सकती है। जैसे हमारी तुअर है, तुअर क्या है कि पूरा साल चलती है। जैसे हमारा शुगर केन है, पूरे 1 ईयर के लिए ग्रो किया जाता है। बट बेटा अब यहाँ पर हम तुअर को, शुगर केन को हम किस क्रॉप में इंक्लूड करें, खरीफ में करें या रबी में करें, देन रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू सी देयर क्रॉप शोविंग पीरियड, मीन्स किस पीरियड टाइम में उनको शो किया गया है। देन वी कैन मीन्स जैसे तुअर है, तुअर को मीन्स अकॉर्डिंग टू जून जुलाई मीन्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून में
ग्रो किया जाता है. सो वी इंक्लूड इन दिस खरीफ. सो ऐसी क्रॉप्स जो पूरे 1 ईयर के लिए ग्रो की जाती है, मीन्स टाइम पीरियड उनका, मीन्स रिक्वायरमेंट होती है उनको 1 ईयर की, मीन्स आफ्टर 1 ईयर द हार्वेस्टिंग they harvested. So we include those crops in, means according to their sowing period, means in which period they show, then we can include that in rabi or include in that in kharif. So understood beta? So up to here you will learn from your book, so you will read this topic, and in the next, means in the next lecture we will discuss the next part, means main crops those are grown in India. So up to here it is clear. So you will draw this table in your notebook also. It will help to remember these points, these things. Okay beta? So if you have any query, you can ask in the comment section.